बेटा 21 to 35 এই ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে? অতটা বেশি জোরে না, হ্যাঁ ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্স। those who have pipetted please read the clinical part. Attendance कौन है? Who's 21, 22, you are 22, 23, 24, 25, 25, মিক্স করো। 26, 27, 28, হয়নি, কোথায় এসছে, কোথায়? 29, কিভাবে পিপেটিং কিভাবে করতে হয়? 29, 30, पिपेटिंग कैसे करना 31, पड़ता है? 32, 33, फास्ट रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे 34, 35. ठीक है, इतना सा। बेटा दो दो इतना करो। नहीं है, ठीक है, इतना सा। এই সরিটা দাও, এটা তুমি করবে, তুমি তুমি করো এটা, वैसे ही करना है, ठीक है? এটা যেন পুরোপুরি এখানে পড়ে, সলিউশনে যেন পড়ে, ঠিক আছে? মিক্স করো, রাখো দেখি। तुम्हारा साथ वाला कहाँ? अकेले कर रहे हो? बेटा मना किया था ना अकेले करने के लिए, अकेले नहीं करना। मैडम एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अकेला करे उसको नहीं देना सैंपल, दो दो में ही करना है सबको। हमारा ग्रुप कहाँ है? अच्छा एब्सेंट था क्या कोई? किसी और के साथ पेयर कर लो। এই সবাই গ্রুপে করবে। এই তোমার তোমার গ্রুপ কোথায়? ঠিক আছে, গ্রুপ ছাড়া কিন্তু কেউ একা করবে না, রিয়েজেন্ট নেই কো, বেশি পড়ে গেছে। ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্ট, ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ মিক্স করো, মিক্স করবে, যাও। গায়ে যেন না লাগে, ঠিক আছে? উপর থেকে দাও না, গায়ে যেন না লাগে, এখানে এখানে যেন পড়ে সলিউশনে পুরোটা। না ছাড়ো ছাড়ো, ঠিক আছে, মিক্স করো, মিক্স করো। ছাড়ো পুরোটা, ছাড়ো, মিক্স করো, যাও। কত মিনিট ইনকিউবেশন? 10 মিনিট। 37 এ নরমাল টেম্পারেচারে কত? রুম টেম্পারেচারে কত? 10 मिनट्स नहीं, 25 लगा था, हाँ 20 to 25 मिनट्स, ठीक है? और जो 37 में जो इंक्यूबेशन होता है वहाँ पर जो যেহেতু টেম্পারেচার বাংলা বোঝো তো, টেম্পারেচার বেশি তাই জন্য ওখানে 10 মিনিটস, ঠিক আছে? আর রুম টেম্পারেচারে একটু বেশি লাগে, ঠিক আছে? बेटा पिपेट आउट क्विकली, जल्दी। ঠিক আছে, ওপর থেকে দেবো, সলিউশন যেন পড়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে। बेटा let me remind you, if you do not enumerate the principle in the clinical part, you won't be awarded attendance today. Please do not make any noise. तो बता देती। सर के जो पेशेंट्स होते हैं जो कीमो
थेरेपी लेते हैं उसमें क्या यूरिक एसिड चेंजेस आता है मतलब बढ़ता है बिल्कुल आता बेटा ঠিক আছে এটা বেশি এসছে তোমার chemotherapy में what you are এটা হচ্ছে you are killing the cancerous 1000 ঠিক cells আছে using targeted drugs okay now when the cell is killed तो बेटा उसका जितना भी अंदर कंपोनेंट है it goes for degradation and সবসময় যখন করবে salvage ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্ট ঠিক मतलब আছে जो भी এই अंदर অবধি। यूजफुल चीज এরকম को ভাবে কেউ salvage করবে करना না ঠিক আছে उसी এটা। हिसाब से क्या होता है जितना अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा वो भी डिग्रेड होता है और उसकी डिग्रेडेशन से क्या बनता है आपका थोड़ा सा एलिवेटेड आता है হুম ঠিক আছে এটা নাও। अरे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ आप लोगों का जल्दी करो बेटा হলো না আবার সেম করলে রিপিটিংটা ঠিকভাবে করো ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্ট বললাম না তুমি এইদিকে তাকাও হ্যাঁ আবার কেন এটা হ্যাঁ এটুকু রিপিটিং ঠিকঠাক না হলে কিন্তু রেজাল্ট ভুলভাল আসবে अरे पीछे मत देख बेटा कॉपी में देख ले अपनी Mix पीछे করো। देख रहा है बैठ के ঠিক আছে রে বাপ রে হাতটা এরকম করে নড়ছে কেন নার্ভের প্রবলেম আছে কি অবস্থা ধরো ভালো করে এত এত শেক করছে কেন হাতটা এত শেক করছে কেন এত নার্ভাস হচ্ছে কেন এ বাবা না নিজেকেই তো করতে হবে না না ছাড়ো ছাড়ো ছেড়ে দাও মিক্স করো ঠিক আছে তোমার গ্রুপ কোথায় तो तुम्हें निच्च केन नो नो ग्रुप में करो ग्रुप में हाँ ऐसे बोला है ना सर ने नहीं बोला है ना नहीं सर ने नहीं बताया नहीं वैसा नहीं करना है in presence of enzyme peroxidase EOD पिंकिश एंड रेडिश नहीं बेटा आइदर पिंकिश और रेडिश जब रेड थोड़ा थोड़ा हल्का होता है तो बेटा पिंक कलर होता है बहुत ज्यादा पिंक कलर मान लो कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रेड हो जाता है बात ये What is the difference between kinetic and endpoint methods? Is this a kinetic or endpoint method? कैसे पता चला? कैसे पता किया that this is an endpoint method? मेहनत छोड़ दी है अब नहीं पढ़ रहे क्या बात होगी बोलो what is the difference between kinetic and endpoint methods इनको मतलब में रिएक्शन के कोई भी दो स्पेसिफिक पॉइंट पे बीच में हम रिएक्शन को रेट मेजर करते हैं काइनेटिक में किन्हीं भी दो पॉइंट्स में in 30 seconds and 90 seconds in endpoint no ऐसा तुम रहने दो बेटा तुम बताओ can you हाँ तुम can you tell the difference between kinetic and endpoint methods बहुत खराब है यार ये तो नहीं होना चाहिए ऐसा बेटा आप ट्राई करो kinetic and endpoint method I am not asking about 2 point or 3 point pure play kinetic and pure play endpoint like the gentleman said that this is the endpoint method fine good but how did you come to know that this is the endpoint method बात है नहीं सब पढ़ लिया प्रिंसिपल भी पढ़ लिया काइनेटिक एंड पॉइंट ही नहीं पता एग्जामिनर तो वहीं पे खेल फिटी कर देगा आपका भाई वहीं फील्डिंग सेट है
प्रिंसिपल खत्म, खेल खत्म, समझे? ट्राई करेगा बेटा? क्या वेरी करता? हाँ, वेरी तो करता है टाइम के हिसाब से। क्या? तो उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन जब टाइम के साथ वेरी करता है उस चीज को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. In endpoint method, what is happening, beta? We are not considering the rate of reaction. We are just letting the reaction to go complete. ठीक है, यूजी लेवल पे तो अब इतना ही समझो बेटा. पीजी पे इसका प्रॉपर क्लास होता है, सेपरेट चैप्टर्स होता है, वो अभी छोड़ देता है. इन एंड पॉइंट मेथड बेटा आपको इंक्यूबेशन टाइम इसीलिए दिया जाता है ताकि रिएक्शन टोटल कंप्लीट हो जाए, फाइनल माइनस इनिशियल. अगर आप प्रिंसिपल भी देखोगे तो इनिशियली तो रिएक्टेंट्स जीरो, प्रोडक्ट जीरो है. क्या है? जीरो. इसीलिए बेटा वो सॉल्यूशन का कलर एकदम क्लियर होता है. विद टाइम कलर डेवलप होता है. कलर डेवलप्स विद टाइम एंड इट रीचेज अ सर्टेन स्टेज आफ्टर अ टाइम जहां पे वो कलर और डीपन आउट नहीं होता. दैट मींस द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. वो रफली इंक्यूबेशन पीरियड में हो जाता है. दिस इज टिपिकली कॉल्ड अ एंड पॉइंट मेथड, जहां पे वी आर मेजरिंग फाइनल माइनस इनिशियल. जो वाटर ब्लैंक लगाते हो ना बेटा, वाटर ब्लैंक आप जिसमें लगाते हो, जो आपको लगा के देता है, ये जो रिएजेंट ब्लैंक का वैल्यू अंदर होता है, दैट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. क्या होता है? दैट इज द इनिशियल वैल्यू. जो मैं कहता हूँ ना बेटा, द डेटा इज ऑलरेडी फीडेड. व्हाट यू आर फीडिंग इन द मशीन इज द फाइनल वैल्यू. कौन सा वैल्यू? फाइनल वैल्यू. फिर वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बेटा ओडी कैलकुलेट करके सब चीज करके आपको रिजल्ट देता है. बट व्हाट हैपेंस इन काइनेटिक मेथड? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जैसे ही आप लोगों ने क्रिएटिनिन तो सबने किया है ना 2 पॉइंट काइनेटिक से, जैसे ही आप लोगों ने बेटा क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए उसमें डाला होगा, द रिएक्शन वुड हैव स्टार्टेड. वहां पे उस टाइम पे एट t इक्वल 0 पे रिएक्टेंट्स आर मैक्सिमम एंड प्रोडक्ट्स आर 0. प्रोडक्ट्स आर एट t इक्वल्स 0. जब रिएक्टेंट सबसे ज्यादा होता है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है और प्रोडक्ट सबसे कम है. यानी कि t इक्वल 0 कोई कलर नहीं है. ठीक है, क्रिएटिनिन पिक्रेट का कोई कलर नहीं है. अब मैं जनरल काइनेटिक की बात करता हूँ. 2 पॉइंट को साइड में रखता है. मशीन मान लीजिए 10 सेकंड बाद एक ऑब्जर्वेशन ले रही है, तो उसे कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है क्रिएटिनिन पिक्रेट का C1. देन इट इज टेकिंग इट 20 सेकंड्स, इट इज गेटिंग अ कॉन्सेंट्रेशन C2. ऐसे ही मान लीजिए 30 पे ले रही है, 40 पे ले रही है, C3, C4. तो विद टाइम व्हाट इज हैपनिंग, द कंसेंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन पिक्रेट इज इंक्रीजिंग एंड द कलर इज गेटिंग इंटेंसिफाइड. नाउ इट विल मेजर कि C2 से C1 में कितना इंटेंसिफाई हुआ, C3 से C2 में कितना इंटेंसिफाई हुआ और C4 से C3 में कितना इंटेंसिफाई हुआ. दैट इज द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन. क्या? चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन. और उससे बेटा कॉन्सेंट्रेशन मेजर होता है. नाउ यू विल से दैट सर व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द टू. देखो, जब बड़ी लैब सेटिंग में तू फिर नहीं सुन रहा बेटा, तुझे सच में अटेंडेंस नहीं मिलेगी. बिहेव योरसेल्फ. आप लोग जैसे भी टेस्ट करते हो बेटा, आप एंड पॉइंट मेथड जैसे लेके बैठो, सब लोग लेके बैठो. ठीक है, आप तो चलो स्टूडेंट्स हो ना. बिग लैब सेटिंग और हॉस्पिटल सेटिंग बेटा, यू हैव टू टर्न अराउंड द इक्विपमेंट्स वेरी, जिसे कहते हैं क्विकली. मान लीजिए 5 अभी लगे, 100 सैंपल पीछे पड़े हैं, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दैट. तो एंड पॉइंट मेथड कंज्यूम्स टाइम. इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मैन पावर. मतलब लगे हुए हैं आप उसमें, आपको 2-3 डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए, ऑल दैट. What happens in kinetic beta? You just put it, aspirate it, and boom, you get the result. So it's a much faster way of doing things. Okay. Plus, most of the kinetic methods they are enzymatic और very specific in nature. इसलिए उनका रिजल्ट भी थोड़ा और ज्यादा प्रिसाइज आता है. ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यू के करीब रहता है. समझे? That is why end point methods are also okay. बहुत प्रोसीजर आज भी बड़ी बड़ी लैब्स में उसी से होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. दैट इज व्हाई काइनेटिक्स आर मोर प्रेफर्ड. याद रहेगा, एंड पॉइंट मेथड इज फाइनल माइनस इनिशियल. काइनेटिक मेथड्स आर चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर बेस्ड ऑन दैट.
अब बात करें अगर 2 पॉइंट काइनेटिक की ना, जो क्रिएटिनिन में किया था आपने बेटा, वहां पे रीडिंग 3 बार लिया जा रहा है। 3 होती है बेटा उसमें रीडिंग, याद रखना, 2 कभी मत बोलना। एट t इक्वल्स 0, एट t इक्वल्स 0, देन सेकंड रीडिंग होती है बेटा t इक्वल्स 30 सेकेंड्स, और फिर फाइनल होती है t इक्वल्स 90 सेकेंड्स। समझ आई बात? क्रिएटिनिन के लिए थोड़ा मतलब एक हाइब्रिड सा प्रोसीजर आप कह सकते हैं, नॉट फुल्ली एंड पॉइंट एंड नॉट फुल्ली काइनेटिक। ठीक है, अंडरस्टूड? याद रखना बेटा, ये कभी मत भूलना इन कोलोरीमेट्रिक और दिस सेमी ऑटो एस्टिमेशंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड काइनेटिक। और आपसे कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा बिकॉज यू आर यूजी स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन ये मत बोलना कि सर हमें पता ही नहीं। ये पाप है भाई, ये पाप मत करना। ठीक है, गई बेटा, तेरी भी अटेंडेंस गई। क्या रोल नंबर है? क्या आंसर है? क्या रोल नंबर है? 23। ठीक है, तेरे साथ कौन है? कोई नहीं। अरे सुन के बहुत दुख हुआ। तुम दोनों का क्या है भाई? सोच समझ के बोलना। कितना वैल्यू कितना है बेटा? गई बेटा, तुम दोनों की भी गई आज। अरे तू चुप रहे, अभी प्रैक्टिकली है। चलो मैं आई आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू। इन सब ने नालायकों ने क्या गलती करी? हाँ, यस। अब समझ आया बेटा क्यों गई अटेंडेंस? बोलो, इसको बोलो, क्या गलती करा है इसने? यूनिट, यूनिट, वो भी शौक में। अब समझ आया? अरे टल क्या कहना चाहिए यार, छठा एस्टिमेशन है, यूनिट नहीं पता अभी तक यार। तेरे से ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई, तेरे से भी श्रीरामपुर। क्या करते हो यार, ऐसे ब्लंडर मत किया करो यार। इफ यू डू दीज काइंड ऑफ ब्लंडर्स, हमारा क्या होगा? आंसर तो ठीक है सबका, इट्स फाइन, बट विदाउट यूनिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, इट्स अ बिग जीरो। विदाउट यूनिट आंसर का कोई कीमत नहीं होता। ठीक है, क्या आंसर है आप दोनों का? 12.57 ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलो पिपिटिंग तो मैं देख रहा हूँ, इट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड एवरी पासिंग डे। पिपिटिंग तो ठीक हो रहा है आप लोगों का, यूनिट नहीं बोलोगे इट्स वेरी बैड यार। विदाउट यूनिट अच्छा नहीं रहता। बोलो प्रिंसिपल, बोलो बेटा, तुम बोलो। छोड़ो छोड़ो, वो तो पानी में तो रहेगा ही रहेगा, छोड़ो, मुद्दे की बात बताओ। यूरिक एसिड, आगे कोई नहीं बोलेगा। यूरिक एसिड, Uric acid present in the serum sample reacts with the enzyme uricase to हाँ। then produce H2O2 and then the H2O2 reacts with allantoin and DCP. हट, वेलेंटोइन, H2O2 plus allantoin. क्या बोल रहे हो? 4 हाँ। amine in the presence of DCPS. हट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीपीएस? Dichlorophenols sulfate. सल्फोनेट। Sulfonate. हाँ, It will form a reddish to pinkish color complex. व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? Uricase. दूसरे स्टेप में पैरोक्सिडेज, पीयूडी, पैरोक्सिडेज। ठीक है, आगे आगे कंप्लीट करो। The intensity of हाँ। the colored complex depends directly proportional to the amount of यूरिक एसिड, यूरिक एसिड प्रेजेंट इन। ऐसा याद करना, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो यूरिक एसिड पे तो ऐसा वाइवा होता है कि खत्म कर देता है आदमी को, जिंदगी खत्म कर देता है। बेटा तुम मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है?
कोई भी प्रॉब्लम हो लैब में आओ, प्रैक्टिस करो, सवाल जवाब करो, डिस्कस करो, ठीक है? ठीक है, कहाँ से हो? अच्छे से मेहनत करो यार, ठीक है? If you are facing any kind of problem or issue, feel free to come to us. All of you. If you need any kind of help, ठीक है? याद रहेगा क्या गलती हुई आज? That creates the perfect condition of precipitating uric acid. और स्पेशली वो प्रेसिपिटेट होकर भी पता है कहाँ आता है? जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, इट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू दैट। और जैसे ही आपका वो मूवमेंट जरा सा भी ऐसे होता है, इट क्रिएट्स एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत खतरनाक पेन होता है। दैट इज व्हाई पीपल आर मोर ससेप्टेबल ऑफ दीज पेन्स इन नाइट। ठीक है, रात में थोड़ा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो होती है, व्हिच फर्दर एग्जैसिबेट्स दिस। ठीक है, ये इसका प्रॉपर डिटेल्ड आंसर ना बेटा बायोकेम के साथ साथ फार्मा में भी मिलता है। ठीक है, आधा यहाँ मिलेगा, आधा फार्मा में मिलेगा ये साथ। ठीक है, इसलिए फास्टिंग या डिहाइड्रेशन का कोई है कि फास्ट इतना देर कुछ खाना नहीं खाया या पानी नहीं पिया इसलिए होता है? पानी नहीं पीने से होता है बेटा। फास्टिंग का तो मुझे नहीं समझ आता। इफ यू आर डिहाइड्रेटिंग बेटा, दैट फर्दर एलिवेट्स द यूरिक एसिड लेवल्स। फास्टिंग का तो मुझे नहीं समझ आता। फास्टिंग का तो हो सकता है, मे बी आई मे बी रॉन्ग। डिहाइड्रेशन तो इज क्लियर कोरिलेशन। ठीक है, सब लोग आ गए? तेरे से शुरू करते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी आ गया, बोलो प्रिंसिपल बोलो। यूरिक एसिड हाँ। सैंपल लेंगे, यूरिक एसिड अरे सीरम सैंपल में क्यों? जो सीरम लेगा उसमें यूरिक एसिड होता ही है बेटा। हाँ आगे बोलो। तो रिएक्ट व्हेन इट रिएक्ट्स विद द यूरिक एसिड कौन सा एंजाइम? यूरियस यूरिएज, यूरिकेज। यूरिकेज एंजाइम बेटा बहुत फर्क होता है। यूरिएज इज फॉर स्प्लिटिंग यूरिया एंड यूरिकेज इज फॉर स्प्लिटिंग यूरिक एसिड। ठीक है, बोलो आगे। तो it will form adenine plus hydrogen peroxide. कौन? इट फॉर्म्स? Adenine. अरे क्या बोल रहे हो? बंद कर, बंद कर। एलेंटोइन। Adenine and hydrogen peroxide. हाँ आगे। फिर वो COPD के साथ किसके साथ? सर वो एंटीपायरिन हाँ प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाँ। along with COPD. सीओपीडी ये किसने लिखवा है? बेटा यू बिहेव योरसेल्फ बोथ ऑफ यू। सीओपीडी क्या बोल रहा है मेरे भाई? DCO डाइक्लोरो डीसीओपी। डाइक्लोरो डाइक्लोरो। हाँ तो ये डीसीओपी होता है। डीसीपीएस। विच एंजाइम? पेरोक्सिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेरोक्सिडेज एंजाइम। सेकंड स्टेप में कौन सा एंजाइम लगता है? पेरोक्सिडेज एंजाइम। ये नहीं भूलना, इसीलिए बेटा इस मेथड का नाम है यूरिकेज पीओडी। आगे बोलो। आगे बोलो, अरे आगे कंप्लीट करो। मिस्टर वत्स वेरी बैड, ऐसा काम नहीं चलेगा। Intensity of the colored complex is directly proportional to amount of uric acid present in sample. मुझे एक बात बताइए, लाल पीला कलर बना के हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। Until and unless we cannot quantify that thing. क्वांटिफाई कैसे होगा? जितना यूरिक एसिड या कोई भी एनालाइट प्रेजेंट होगा उतना डार्क कलर आएगा। कई जगह पे क्या होता है, जो एडवांस कोलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन होता है उनमें कलर गायब भी होता है, पता है? Do you know one thing? There are certain kits जहाँ पे आप इनिशियली डालेंगे ना फॉर एनी एनालाइट, बहुत एडवांस एनालाइट्स जो होता है, इट इज अ डार्क येलोइश और वेरी डार्क ग्रीनिश कलर बेटा।
with time what happens, that color starts to disappear and that rate of disappearance is also calculated. यूजी में कुछ नहीं होता, दैट्स फॉर पीजी, पीएचडी और डीएमवीएम जब करता ना बेटा, उसमें आता बहुत एक्सपेरिमेंट्स होता है, बहुत मजा आता। तो उल्टा भी होता है, वहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। तो ये चीज नहीं भूलनी है बेटा, दैट इंटेंसिटी ऑफ द कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज, बोलो हाँ, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? In the serum sample. This line has to be added in every colorimetric estimation, whether you are doing glucose or anything. Without this, your answer is incomplete, or I should say wrong. ये नहीं लिखेंगे आंसर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट प्रिंसिपल यू वोंट गेट एनी मार्क्स। वहीं पे ओपनिंग में एग्जाम वो प्रोसीजर नहीं देखेगा आपका। अगर आपका पिंक कलर आ रहा है उसे भी पता बेटा दैट यू नो द प्रोसीजर। आपकी क्यूएट देख लेगा, ही विल गेट एन आइडिया, बट इफ यू विल नॉट टेल द प्रिंसिपल यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है मिस्टर वत्स, मेहनत कीजिए थोड़ा, ठीक है। गाड़ी थोड़ा थोड़ा ट्रैक से उतर रही, ओके, थोड़ा सा मेहनत करो। आंसर क्या है वैसे? कितना? क्या बात कर रहा है? 4 बार सैंपल लिया था क्या बेटा? इसका 1/4 कर ले, डिवाइड बाय 4 कर ले, सब ठीक है। इतना ज्यादा मत लिखना, इतने में तो आदमी। आपका कितना है? क्या रोल नंबर है? आज अटेंडेंस नहीं मिलेगी। क्या गलती करी बेटा इसने? हाँ, बेटा छठा एस्टिमेशन है आज, 6th एस्टिमेशन। 6 एस्टिमेशन होने के बाद भी आपको यूनिट नहीं अभी रिपोर्ट करना आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे अब बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा? एग्जाम प्रेशर इज अ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर बेटा। वहां पे आप अभी बोल देंगे, अभी तो चलो हम तो वी ऑल नो ईच अदर, ठीक है, ही हो जाएगा। मैं भी बोल ही देता हूँ नहीं मिलेगी, मिलनी तो सभी को ही है, क्या फर्क पड़ता है। बट दैट केस ना बेटा, दैट्स अ डिफरेंट केस। प्रिपेयर भी करते थे बेटा, तो जब बेड में बैठ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना बेटा, वो हो जाता है। एग्जाम रूम में जाके सॉल्व करने में ना a+b का होल स्क्वायर भी नहीं याद आता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर ना अच्छे अच्छों का हाथ हिला देता है। आप दोनों को कितना? ज्यादा बेटा, ज्यादा है। आप दोनों का? आप दोनों साथ में हो? कितना है? गुड गुड, वेरी गुड। आप तीनों हो या आप अकेले हो? आप किसके साथ हो? क्या? हाँ, अरे यूनिट याद रखने में क्या दिक्कत होती है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। विदाउट यूनिट में तो 6 महीने हो गए भाई, बिना यूनिट के आंसर मत रिपोर्ट करो, ठीक है। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। और क्लिनिकल सबको याद होना चाहिए बेटा, इन विच इट इज इंक्रीज एंड इन विच इट इज डिक्रीज। यूरिक एसिड का कम वैसे बहुत बहुत कम ही होता है, 1-2 ही होता है। आई थिंक वो क्या होता है, फैनकॉनी सिंड्रोम होता है शायद, 1-2 ही होता है, देख लेना, वेरी रेयर केसेस। थिंक इट इज फैनकॉनी सिंड्रोम इन दैट, ठीक है। मेहनत कर मेरे शेर, ठीक है। एनी क्वेरीज? किसी का कोई डाउट? बेटा प्रिंसिपल और क्लिनिकल कोई नहीं भूलेगा, प्लीज। यस सर नहीं बोलना है, याद करना है, ठीक है। आपके बाद भी हम यही रहेंगे, वो मैं नहीं चाहता आप लोग यहाँ रहें, ठीक है। आप लोग प्रमोट होकर सेकंड ईयर में अच्छे से जाएं, शुभकामनाओं के साथ, ओके।